I used to read newspapers, but I never made notes during my pre and my mains. But it's unbelievable for me also that I did it, because we've always seen कि इतने time तक किसी ने crack नहीं किया है, या there are many stories that way. I have done it in one attempt, and within a span of 1 year, I want all of you to believe that as well, because if I can, you can. But there are things to it. You should know, because CSAT has become so extremely important that is deciding the people who are getting into the list and not. Examiner को क्या चाहिए? आप the problem is we think that the more you read, the better you'll write. आपको लगता है कि अगर 10 डिजास्टर हैं तो 10 डिजास्टर के 10 आंसर बनेंगे, but there are some points that are common to all. So when you are going into the examination hall, I had made this, right? So NDA में guidelines लिख दीजिए. So ऐसे आपको strategize करना पड़ेगा in that 1 year. I think it can be done. I can tell you a timeline if you. I'll go stage wise कि आपको कैसे prepare करना है, या what different things I did. Basic sources, I think most of the sources were very single sources as well as basic, because I was the first timer, तो मेरे पास उतना time नहीं था. So I've shared my books and everything on the Telegram, so I'll not do that repeatedly. If you want to refer to that, you can. What I will share is what differently I did in my pre. So important चीज है PYQs, ठीक है? आपको revisions करने हैं. The problem is we try to go to multiple sources. Avoid that. Choose one source, stick to it and revise. You should be very confident of what you've read. ठीक है? तो आपने जो पढ़ा है वो याद होना चाहिए. मल्टीपल सोर्सेस से मल्टीपल चीजें पढ़ के फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है? तीसरी बात, calm and composure during your exam, because 2023 paper, if you see, it's been a little uncertain and very dicey. So when you see such paper, you tend to be ki, how will I clear this? So that has to be maintained, and you have to maintain a calm and composure in that. Any specific issue you want to address for prelims? Current affairs. So I used to read newspapers, but I never made notes during my pre and my mains. The only time that I ever made notes was during my interview. Okay. So I would suggest you do the same. So आपको एक gist मिल जाता है कि overall what is going on in the world. You might come across some topics that are continuously repeated. So what newspaper gives you is कि आपको थीम वाइज भी क्या पढ़ना चाहिए. जैसे अगर you derive the static from dynamic. So if there is a governor issue which has been going on for the past 2-3 months, so the UPSC might not ask you that current, but they'll ask you the static about it. So that's how you can use those current affairs that way. Does not mean कि factual है, but you can understand कि अच्छा ये trend पूछ सकते हैं करके, ठीक है? Anything very specific to pre? Yes. Yeah. What is the ideal timeline to prepare for 2025, starting with the prelims? See, I do believe, because I have done it in one attempt, and within a span of 1 year, I want all of you to believe that as well. Because if I can, you can. But there are things to it. You should know what things you can do better and what things you don't. जैसे मुझे साइंस एंड टेक की चीजें जो थी, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, मुझे एक बेसिक आइडिया होता था. सो दैट एरिया आई नेवर हैड टू वर्क. आई हैड टू, बट इतना नहीं जितना मुझे पॉलिटी इकोनॉमी में करना पड़ा. सो ऐसे आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा इन दैट 1 year. आई थिंक इट कैन बी डन. आई कैन टेल यू अ टाइमलाइन इफ यू वांट. अगर आपके पास 1 year का टाइम है, तो आप कंसिडर करिए कि आप जून जुलाई स्टार्ट कर रहे हैं. So in these months and from August, September, this is not something I followed, but I wish I had, because my timeline starts from here.
ओके अगस्त, मुझे ये 2 महीने नहीं मिल पाए थे बिकॉज आई वॉज वर्किंग. सो बैक देन फिर मुझे समझ आया कि यार पॉसिबल नहीं है विथ वर्किंग, सो आई क्विट एंड आई वेंट इन फ्रॉम अगस्त. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इन दीज 4 मंथ्स इज प्रिपेयर योर प्री के लिए, या आई वुड नॉट से प्री, आपके जो जीएस की टॉपिक्स है ना उसको खत्म करिए. मतलब ऑल दी सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, आप पहले 2 मंथ्स में ऐसे टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करिए. बिकॉज इफ यू आर अ फ्रेश पर्सन, हार्डर टॉपिक्स पिकअप करिए, है ना. तो जून जुलाई में अगर आपको लगता है कि पॉलिटी इकोनॉमी जो मेरे लिए था वेरी न्यू एंड अ लिटिल बिट हार्डर, सो आई वुड हैव गॉन फॉर दैट इन दी फर्स्ट 2 months. Because you are very fresh, right? So you would put more efforts. Please don't mind my handwriting. Okay. So आपको जो difficult लगता है या you feel, so that you can go, because in the first 2 months you'll be very productive and everything. There's no problem in that. Then you try to finish whatever else etc. is there by September, at least one reading. ठीक है. वन रीडिंग में क्या होगा ना, पहला रीडिंग सबसे मुश्किल वाला होता है क्योंकि एवरीथिंग इज न्यू. द सेकेंड वन इज अ लॉट फास्टर. सो दिस विल बी माई टाइमलाइन फॉर योर फर्स्ट रीडिंग. आई स्टार्टेड माई ऑप्शनल इन नवंबर, but you should start by October if you've decided on your optional, because optional forms a very big bulk of mains. So I would say कि you should do optional before that. तो आप अक्टूबर टू दिसंबर में आधा आधा टाइम डिवाइड कर सकते हैं, या मेजर टाइम आप आपके ऑप्शनल को दे सकते हैं. इफ यू स्टडी फॉर एग्जाम्पल 10 hours in a day, right, you can give 60%, which is almost, I think, I don't know how much, 6 hours, है ना. आप उसको दे सकते हैं ऑप्शनल को, एंड यू कैन गिव योर 4 hours to something now that you have read, right, basics, these things, readings. So now you're going to have to revise what you have read, and you have to do probably, value addition. And जैसे इन्होंने कहा विजन का मैगजीन आता है, मंथली मैगजीन, एनी कोचिंग फॉर दैट मैटर, सो यू कैन गो फॉर दैट. न्यूज़पेपर रीडिंग आई वुड जेन्युइनली से कि आपको थोड़ा कंसिस्टेंटली करना चाहिए. नहीं कर पाओ तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे एडिटोरियल्स के वीडियोस आते हैं. दैट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव, दैट कीप्स योर माइंड रनिंग एंड फ्रेश. हम स्टैटिक चीजें पढ़ते हैं ना, उसमें बोर हो जाते हैं बिकॉज इट्स अ लॉट फैक्चुअल. तो आपको अगर आपकी प्रेपरेशन को इंटरेस्टिंग बनाए रखना है, आई वुड सजेस्ट यू डू दैट. ठीक है. सो दैट हैज टू गो अलॉन्ग विथ वट एवर. Do your optional well. I could finish only 60 to 70% because of the shortage of time. So I did my optional till February. So even in Jan, my optional was anthropology, which I did from Level Up. So Jan तक मैं Jan and Feb mid तक मैं वही कर रही थी. So I would actually suggest for people कि आप Jan तक करिए. Feb, March, April, May आप अगर फर्स्ट टाइमर हैं तो थोड़ा प्री ओरिएंटेड पढ़ सकते हैं. इफ नॉट, यू अगर नहीं हुआ है ऑप्शनल तो स्टिल जैसे मैंने फेब मिड तक दिया था आप दे सकते हैं. बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ फर्स्ट टाइमर, I thought prelims need that much amount of efforts to be there. And while you are preparing for that, आपका मेंस भी हो ही रहा है. Those things only are going to be used in the mains. So ऐसे कुछ नहीं है. ठीक है. In this period as well, from your October, December or Jan, Feb, I think Jan, Feb तक आपका fairly एक amount of portion finish हो जाता है. तो आप ये दिसंबर जैन या जैन फेब के टाइम पे थोड़ा आंसर राइटिंग कर सकते हैं. आई हैव नॉट डन इट. ओके. सो दैट वाज बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि इफ इट कम्स टू इट आई प्रायोरिटाइज प्री, बिकॉज मुझे पता था दैट प्री इज अ मच बिगर ऑब्स्टिकल फॉर मी. सो आई नीडेड टू फोकस मोर. But this is not what I would suggest to everyone, depending on your strength. So try to do a bit of answer writing practice so that you understand कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं. मैंने पहले थोड़ा बहुत करके देखा था तो मुझे लगा था दिस इज डूएबल फॉर मी. ठीक है. सो यू इवेल्युएट फॉर योर सेल्फ. इफ यू थिंक यू कैन मैनेज इन दोज 3 months वेरी वेल, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट इफ यू कैन गेट द टाइम तो आप इन 2 महीने में निकालिए. ठीक है. इसके बाद आप मार्च के बाद प्रॉपरली प्री का कर सकते हैं. ठीक है. प्री में यही है, टेस्ट आपको देने हैं, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक विद द चेंज इन द पैटर्न नाउ इट्स अ लॉट मोर इम्पॉर्टेंट टू गिव मॉक्स बिकॉज यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व अ पेपर. It's no more a test of a fact that has been given and that ऐसा का ऐसा आ जाएगा. That is not there.
सो आपको आपके नॉलेज से अप्लाई करके वो एप्लीकेशन के थ्रू आंसर मिलेगा, सम और दी अदर, यू नो, डिडक्शन, एनालिसिस, वो सब बहुत टेक्निकल है, तो ये सॉल्विंग से आएगा आपको। ठीक है, पीवाईक्यूज तो मैं बोल चुकी हूँ, पीवाईक्यूज आर मतलब अननेसेसरी, आप कुछ भी इसको करके स्किप नहीं कर सकते, बट आई फील मॉक्स आर नाउ एज वेल नेसेसरी बिकॉज दे गिव यू अ जिस्ट ऑफ हाउ टू सॉल्व दीज न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एनी इश्यूज विद द टाइमलाइन, कुछ है, एनी क्वेरी? पूछ लीजिए, बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? See, this is a session for you, है ना? I have come here to there is no doubt such as silly. सब लोग नए हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके मन में होता है, तो आई फील दिस इज अ गुड सेशन फॉर यू टू आस्क इफ यू हैव एनीथिंग। 2 महीने में डू नॉट रीड मच न्यू मटेरियल, दैट इज माई फर्स्ट एडवाइस। ट्राई टू रिवाइज, बिकॉज मुझे लगता है हम हमेशा भूल जाते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो कितना सही से आता है। मैं अगर आपको आज भी बुक उठा के मतलब पूछ लूं, तो आर यू श्योर कि आपको 100% उसकी हर लाइन याद है? तो मुझे लगता है कि जो किताबें आप अभी पढ़ चुके हैं अब तक, उसको रिवाइज करिए। ठीक है, टॉपिक वाइज हाई यील्डिंग टॉपिक्स कौन से हैं आप लोगों ने दिया है पहले प्री? हाँ, तो व्हाट वुड यू से आर दी हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स इन प्री? सो मैक्सिमम क्या पूछा जाता है प्री में, क्या क्या, अगर एक सब्जेक्ट वाइज अगर आपको देखो, एवरीथिंग इज अ लॉट अबाउट प्रायोरिटी, है ना? अगर आपके पास कोई चीज करने के लिए बिल्कुल कम समय है, तो आप किस चीज को प्रायोरिटी दोगे? इफ यू हैव 3 days, तो आप क्या करोगे? सो आई वुड गिव फेयर इनफ टू पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट. So a bulk of the questions in the pre are coming from these three. So you cannot say कि यार ये मैंने बहुत बार पढ़ा है, but मैं science and tech का कुछ नया पढ़ लेता हूँ. So that's a wrong strategy. You know that science and tech comes, but इतने questions नहीं आते उसमें से जितने ये तीनों आते हैं, है ना? So you have to understand, and in the last 2 months, you have to focus on your basics, on whatever you have read. एंड अभी जो कंपाइलेशंस आते हैं पीटी वगैरह, ट्राई टू फिनिश देम ऑफ। ठीक है, 2 months में, और start doing PYQs in the morning. I had done that. I think that worked well. So what I used to do is I used to get up in the morning, 9 o'clock, 8 o'clock, and then 9 to 10 I used to do PYQs. तो आप एक अपना बना लीजिए, आपको 9, 9:30 से 11:30 या 9 से 11 का जो भी पेपर है वो देना होता है, तो आपके माइंड को उस चीज की आदत लगाइए कि मुझे 9:30 बजे उठ के सोचना है। ठीक है, सो दैट विल बी अ मच बेटर ऑप्शन फॉर यू इन द लास्ट 2 months। ठीक है, आई डिड पेपर वाइज, सो आई यूज टू टेक अप पेपर्स। तो जैसे मैं हर रोज 50 MCQ करती थी, तो मैंने जैसे 2022 का पेपर से स्टार्ट किया है, सो 50-50 100 क्वेश्चंस 2 दिन में खत्म हो जाता है। देन वो 1 घंटा देने के बाद आप देखिए भी कि आपने क्या रॉन्ग किया है, आप क्या राइट कर सकते थे। इवेल्युएट योर सेल्फ वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग एंड वेयर यू नीड टू वर्क मोर। ओके, एनीथिंग एल्स? प्री के लिए पूछ रहे हैं, तो टू बी ऑनेस्ट विद साइंस एंड टेक आई डिड, यू हैव टू नो द बेसिक्स, राइट? जैसे सैटेलाइट हैं और ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, अगर आपको यही चीजें नहीं पता तो आपको बिल्कुल पीटी पढ़ते से नहीं आ जाएगा। तो बेसिक्स पता हो तो आप रिलाई कर सकते हैं। 2 साल के आई वुड एडवाइस कि आप 2 साल का देखिए, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। जैसे साइंस एंड टेक है, तो उसमें कुछ टर्म्स अगर पिछले साल वाले पीटी में भी आए हुए हैं, तो यू कैन रेफर टू दैट एज वेल, बिकॉज हम बिल्कुल कम कंटेंट पढ़ते हैं उसके लिए, तो यू कैन डू दैट। एनवायरमेंट के लिए मैंने प्री के लिए तो बस यही किया था, एंड आई हैड ऑन माय चैनल आई हैव पुट वन पीडीएफ, एक जीके टुडे का एक पीडीएफ था विच आई फाउंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर दी यू नो टर्मिनोलॉजीज, तो वो मैंने किया था। एंड देयर वाज शंकर आईएएस से मैंने कुछ चीजें जो थी ना, जैसे लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, and international conventions on environment hai, so that part I'd cover, the static part I'd cover. So environment a little diversifiedly I had prepared, but I think that is fine. Any question? Okay. Someone is asking that I'm scoring above 110 on CSAT mocks, but failed terribly in last CSAT. So how to fix this? Not able to eliminate 2 options in CSAT.
So CSAT, I would suggest, even this year was a shocker for everyone. If you think that in mocks you are doing that, I would still suggest कि आप एक बार ये साल का दीजिए पेपर और उसमें आपको क्या डिफिकल्टीज आई है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज 2023 पेपर was a bit harder, a lot harder, I would say, in terms of maths. So now what you can do is you can एक्सपेक्ट कि अब यूपीएससी इससे नीचे नहीं जाएगा, तो आप उसी लेवल का प्रेपरेशन करिए कि इसके लिए हम क्या फॉलो कर सकते हैं. आई वुड से कि इज द पर्सन स्कोरिंग, इफ दे आर स्कोरिंग अभी के इसमें 110, आई थिंक देन दे शुड डू वेल इन 2024. बट प्रीवियसली अ लॉट ऑफ द मॉक्स वर बेस्ड टिल 2022, so they were on a lot on the easier side. But अभी के जो मॉक्स है, आई थिंक इवन कोचिंग्स हैव रियलाइज दैट. सो अभी भी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स के आ जाते हैं, देयर मॉक्स आर अ लिटिल हायर ऑन दिस साइड. आई थिंक आई हैव नॉट सीन येट, बट आई एम होपफुल कि वैसे होगा, तो यू शुड डू दैट. And how to prepare in an integrated manner, prelims and mains together? So for mains, actually, it's a very difficult to understand and digest story, but I never prepared my notes before my pre. मैंने बिल्कुल बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर ही करे थे, और मैंने मोस्ट ऑफ द नोट्स मेरे मेंस के ड्यूरिंग माय मेंस बनाए हैं ड्यूरिंग दोस 3 months. सो integrated approach, I never did a separation between the two. So I would suggest कि आप एक बार अगर आपका what do you say basics clear हो जाता है, and then you can go on to the answer writing. So the answer writing will give you a gist of how you can integrate both. I will see. I will tell you how what I did. I do not know, because see, learner slow or fast is a very subjective thing, and I have always thought that there are many things that I did not do, and I was very dissatisfied with a lot of the things I did. So I would still say, कि नहीं, I did not do well. So that's a very subjective thing. I would suggest, even if you are a fast learner, I couldn't do it, but you should. I had, of course, everybody has their own constraints. My story is a way of telling that you can, but do not try to if you have the time. डोंट गो कि मैं स्लो लर्नर हूँ या फास्ट लर्नर हूँ, तो मैं फास्ट हूँ तो मैं 3 महीने में नहीं. इवन इफ यू आर फास्ट, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप उसी टाइम पे करिए, है ना. तो उसको कोई ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ये करना नहीं है. मैं बता रही हूँ, डूइंग दैट इन बाय डिसम्बर जैन, you are very well versed with most of your GS portion, right? If you have read the basic books. So you will be able to write at least a few answers that will give you a, you know, a heads up and a start, head start बोलते हैं ना, वो देगा आपको. तो मेंस के वक्त कैसा था, I was, you know, I had to be very consistent. I took 2 day break in that 3 month period. So I was that consistent. So it's a little difficult to do that, and it's also very exhausting. So don't do that. If you have the time, prepare. If not, I am an example that you can do it. How to handle prelims paper, like what is the ideal attempt and how to approach the questions if one is doing more negative? Okay. So firstly, I think if we are talking about the mocks and doing negative, understand where you are going wrong, evaluating your own mistakes, ki whether it's a silly mistake that you did that you knew and you marked wrong, whether it's in the analysis that you analyzed wrong and marked it, whether you did not know the fact and still marked it wrong. So there are going to be different things to understand कि आपके पेपर में ज्यादा नेगेटिव क्यों हो रहा है. That is the first thing. And the second thing is, do not focus too much on the score part. Understand मेरे scores in all the prelims which I had joined vision का tests. So उसमें मेरे usually 70-80s आते थे. And I was also worried. But then I understood कि a lot of the questions that they are asking is a lot of knowledge based जो मैंने कभी नहीं पढ़ा है. So I can take from that कि मैं इसमें से value addition कर लूँ. And then I can, you know, कीप फोकस कि हाँ मैं नॉलेज बेस तो गलत नहीं कर रही हूँ, जो मुझे पता है वो गलत नहीं कर रही हूँ. दैट इज द की to your paper. One is asking about anthropology. Did you join Anthropology Foundation batch in 2022? And regarding anthropology, how much time is required to make own self notes for faster revision at last minute? So I joined my anthro classes in 2022 November.
I had joined the October batch. So मैं almost 1 महीना backtrack थी. So I had to see the recorded videos and finish my portion in November, December, and Jan. So I had made comprehensive notes, but the smaller notes that I made was during my mains. I did not, consolidate them during the pre, but उसके बाद ही करा है. तो एक्चुअली ना मेरे कुछ पीडीएफ्स हैं, मैं आपको बता दूंगी. मतलब आई शो हाउ आई हैव मेड नोट्स. आई टेल यू बिट अबाउट मेंस आल्सो. अगर प्री का हो गया होगा तो आई मूव टू मेंस. सो विथ एंथ्रो थिंग, मैंने मतलब सी दिस इज द प्रॉब्लम इज माई स्टोरी इज अ लिटिल अनबिलीवेबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल बिकॉज we always, and it is unbelievable. If you might not understand this, but it's unbelievable for me also that I did it, because we've always seen कि इतने टाइम तक किसी ने क्रैक नहीं किया है, या there are many stories that way. But I think if you've seen Artika Shukla करके मैम एक हैं जो AIR 4 थे तभी, and she was also a medical student. So her story is sort of similar. उनका तो मेरे से भी ज्यादा है, that she prepared in 6-7 months or something. वो तो ज्यादा ही ये है. But I want you to understand कि if you know your strengths, आपको पहले आंसर राइटिंग आपने करी है कभी आपके कॉलेज में या कुछ? हाँ. हाँ. तो ऐसे होता है ना सर कि एमबीबीएस में मैंने काफी कुछ उसमें से सीखा है, बिकॉज आई हैड टू राइट अ लॉट एंड लॉट ऑफ आंसर्स. सो दैट वे आई न्यू दैट आई डू वेल, एंड आई डिड वेल इन माई एमबीबीएस इज वेल, लाइक इन टर्म्स ऑफ पेपर. ठीक है. सो आई हैड दैट कॉन्फिडेंस, इसीलिए मैंने उतना फोकस नहीं करा था. ठीक है. नोट मेकिंग में आई विल कम टू द मीन्स नोट मेकिंग. यू वर सॉरी आई. Yeah. Anthro ke liye, there were 3 sources other than my own notes, which I thought needed a lot of, I think needed value addition. So I'd refer to Akshat Jain sir ka book. The other is Narayan Amit sir ke notes. They are very comprehensive because he's done that much of research. So the easy part becomes you just have to read that. मतलब उन्होंने उतनी मेहनत करी है, वो आपको शेयर कर चुके हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड द थर्ड पार्ट वाज अपाला मिश्रा मैम है, उनके कुछ नोट्स में से मैंने कुछ वैल्यू एडिशंस करे हुए हैं. हाँ. फॉर ट्राइबल, फॉर फिजिकल आई डिड मोस्टली अमित नारायण अमित सर के, क्योंकि दे आर वेरी गुड. फॉर सोशियो कल्चरल मोस्टली मैंने अपने नोट्स यूज किए हैं बिकॉज दे वर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन दैट वे. सो आई हैड गिवन 2 करणदीप सर के लाइक क्लासेस में ही ऐसे 2 सेक्शनल टेस्ट हुए थे, तो तब मैंने लिखे थे. बट आई टुक ऑलमोस्ट 4.5 hours टू राइट दोज पेपर्स, बट आई हैड रिटन. ठीक है. एंड इट वॉज मोर लाइक आई रेफर्ड ऑल्सो कि क्या लिखना है, मतलब ओपन बुक टाइप्स भी किया था मैंने, क्योंकि नहीं समझ आ रहा था. बट आई वुड से दैट माई मेन प्रैक्टिस स्टार्टेड इट सेल्फ इन द मेन्स पीरियड. सो ये 2 मैंने लिखे थे. आई हैड एन आइडिया, एंड जो उन्होंने फीडबैक या पेपर चेकिंग करा था कि अच्छा इसमें ये ऐसे करना चाहिए या ऐसे पैटर्न में लिखना चाहिए, दैट्स आई. नहीं यार, उतना नहीं पढ़ना हो पाया मेरे से. बट मैं रेफर कर, मतलब अगर मुझे लगता है कि किसी टॉपिक में आई नीड अ वैल्यू एडिशन, सो आई हैव रेफर्ड. इफ ओनली आई फील, मोस्टली आई फील सर के जो नोट्स है ना वो उसी पीडीएफ के शॉर्ट होते हैं, तो यू मोस्टली डोंट नीड दैम. बट इफ यू डू तो यू कैन रेफर फॉर दैट. बट आई बेयरली डिड दैट. एंथ्रो के लिए मैंने सोशो कल्चरल में थोड़ा किया था. सी फिजिकल एंड जेनेटिक्स ये. हाँ. तो सोशियो का मैंने कैसे करा था ना, कुछ कुछ चीजें एक तो अक्षत जैन सर की बुक से ही डायरेक्टली उठाई हैं. उनके सारे क्वेश्चन एंड आंसर टाइप है, तो आप उसी को उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. उसमें आपको कुछ अच्छा लग जाए, स्निपेट अच्छा लग जाए, आप वो उठा लीजिए. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के लिए किया था, बट बिल्कुल ऐसे वेल प्रिपेयर्ड था ऐसा नहीं था. आई हैड अ फ्यू थिंग्स इन माई माइंड कि अगर ये आएगा तो मैं. देखो अभी इस पे एड्रेस मैं करूंगी. सो देर आर फ्यू टॉपिक्स जहां पे ना आप वैल्यू एडिशन ज्यादा होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक्स, देर इज अ स्पेसिफिक थिंग कि ये सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम है. अब आप उसमें 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख देंगे तो वो इतना ये नहीं लगेगा कि बहुत अलग कुछ कुछ नहीं लिख सकते. द डिफरेंस वेर यू कैन मेक इज सोशियो कल्चरल, जहाँ पे थ्योरीज हैं, स्कॉलर्स हैं. मैंने अक्षत जैन सर की बुक मैं बताती हूँ, उनकी जेनेटिक्स इज वेरी गुड, लाइक बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने बिल्कुल वही पढ़ा है. और उसी से, क्योंकि मुझे पता था इसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा. ठीक है. कि अगर मैं दूसरे टॉपर नोट्स भी देख लूं तो थोड़े बहुत एडिशनल पॉइंट्स, ये नारायण अमित सर के तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव थे जेनेटिक्स, तो वो मैं नहीं कर पाई थी. तो मैंने अक्षत जैन सर की बुक ली थी. फॉर सम टॉपिक्स ही इज वेरी गुड, बट
where there is value addition needed, I would say that you need to add more depth to your answer in that terms. Indian anthropologist की बिल्कुल कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, तो अगर आपको कभी किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में लिखना है तो नारायण अमित सर से फिर मैंने ऐड कर लिया था कि ये बुक्स भी हैं या ये कॉन्ट्रीब्यूशंस भी है एटसेट्रा, सो दैट वे very important. So what happens is in a paper like anthropology, in any paper for that matter, the examiner doesn't know you. So the only way he knows you and understands that this person knows something is what you write. तो आप जब स्कॉलर के नेम अलग अलग क्वेश्चन में मेंशन करने की कोशिश करते हैं, इवन इफ इट्स नॉट आस्क्ड, है ना, अगर कोई मतलब आप एग्जाम्पल देती हूँ कि कुछ फैमिली के ऊपर है या मैरिज के ऊपर है, तो अगर उसमें छोटू सा भी कुछ पूछा है तो भी आप क्या कीजिए, अगर स्कॉलर का नाम नहीं भी पूछा है तो आप उसमें मेंशन कर दीजिए कि कुछ स्कॉलर का ये कहना है, तो उसको पता चलेगा अरे शी नोज कि ये सब है करके. सो दिस यू कैन डू विच आई डिड इन माई पेपर वन इन दैट, तो आई थिंक दैट वर्कड वेल फॉर मी. हाँ, आंसर कॉपीज का ये है कि I have written 3 tests in Anthro. I'm telling you, तो very unbelievable for me as well. So मैंने 3 लिखे थे जो मुझे टॉपिक्स लगते थे कि I need to write down and understand. तो that I will put whatever I've written on the Telegram channel if you want. नहीं. सो यार एक्चुअली क्या था, नोट्स तो मेरे यही थे करणदीप सर के जो बनाए थे. अब मेरे पास 3 महीने में इतना टाइम नहीं है कि मैं कर पाऊं, तो मैंने क्या किया था, now because I had referred to so many things, so what I did was, जैसे अभी कर लीजिए कि कोई टॉपिक 1 है, टॉपिक 2 है ना, तो मैंने एक ऐसी अपने सिलेबस का वो पीडीएफ होता है ना, वो मैं आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ डिजिटल नोट मेकिंग, तो वो सिलेबस का ये कर लिया था. उसमें ना हर सिलेबस के टॉपिक के आगे मैंने लिख लिया कि मैंने वो कहाँ से पढ़ा हुआ है. तो जैसे अगर मैंने लाइक फॉर एग्जाम्पल जो वो स्टार्टिंग के टॉपिक है मीनिंग्स एंड ऑल दैट, तो वो मैंने नोट से पढ़ा था, तो मैं ऐसे लिख दूंगी माई ओन नोट्स. ठीक है. अब जो चीज आप डायरेक्ट रिवाइज कर सकते हैं, जी सबसे बड़ा इविल है नोट मेकिंग. इट्स अ बून एंड बेन. इफ यू ओवर डू इट, आप मतलब आप फ्लड हो जाओगे नोट्स के साथ. जो ऑलरेडी है ना उसके लिए नोट्स मत बनाइए. अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे लास्ट मोमेंट रिवाइज करने के लिए लग जाएगा तो बनाइए. ठीक है. तो जो ज्यादा बल्कि टॉपिक्स थे ना उसका मैंने क्या करा था, नोट्स के सब हेडिंग्स बनाए थे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हर चीज का नोट्स मत बनाइए. अब आपने जो पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज करने के लिए शॉर्ट बना लीजिए, क्योंकि आपको लास्ट डे पे देखना तो पड़ेगा जाने के पहले. तो आप हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का अगर एक ये है थियोरी है तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है ना, यू मेक दैट historical. See, I'll tell you, so what our problem is, we see historical, but if you are seeing theory only as a way of that particular thing being asked, that's not the problem. आप अगर कोई भी दूसरा सोशियो कल्चरल आ रहा है ना उसमें फ्रांस बोआ का डाल दीजिए, है ना. तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म कैन बी यूज्ड एनीवेयर यू वांट इन अ सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट. ठीक है. तो आप कोई भी चीज को उस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर आपको ये सर ने बताया था मुझे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है ना तो थ्योरी से सोचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही है बेसिक्स. अगर आप एक एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट हैं तो थ्योरी अगर आपकी क्लियर है तो आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो आप वो बता दीजिए कि ये थ्योरी वाला ये करेगा, या उसके पर्सपेक्टिव डाल दीजिए. ठीक है. Could you please share your strategy for GS mains answer writing? श्योर. सो मैंने हिस्ट्री के लिए तो वही है, जो एनसीईआरटीज है, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा एंड एवरीथिंग, जो वो बुक्स हैं वो 2 है फॉर एंशियंट मिडीवल. नहीं, सो आई टेल यू ऑनेस्टली, मिडीवल नहीं हो पाया मेरे से. ठीक है. एंशियंट थोड़ा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन ये काफी कुछ एंथ्रो में भी होता है तो मैंने पढ़ लिया था. एंशियंट आई हैड रेड, मिडीवल बेयरली टच किया था, बट एक थोड़ा टाइमलाइन देख ली थी. देयर इज अ बुक कॉल्ड ल्यूसेंट जीके करके. सो दैट इज अ वेरी, इफ यू आर समबडी हु कैन डू अ बिट ऑफ मेमोराइजेशन, सो आप प्री के पहले जा रहे हैं और आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो आप एक टाइमलाइन तो देख ही सकते हैं कि कौन कब आके गया है. तो मैंने वैसे किया था कि हिस्ट्री के लिए मिडीवल मैंने, बिकॉज मेरे पास टाइम कम था तो मैंने ऐसे ल्यूसेंट से थोड़ा देख लिया था कि क्या टाइमलाइन था, तो एटलीस्ट अगेन पीवाई क्यूज में देखिए क्या पूछा है ना. पीवाई क्यूज में जो जो चीजें पूछी गई हैं पहले वही आप कोशिश कीजिए, वही थीम्स या वही अराउंड मुगल आर्किटेक्चर अगर कुछ पूछा है या समथिंग अराउंड दैट तो वो देख लीजिए.
So modern history, first I read Bipin Chandra because I found it interesting. But then later I realized they don't cover a lot of facts. So then I had to shift to Spectrum. So this is a very weird story कि before pre I usually don't, मैंने इनको बोला कि यार 2 महीने पहले नया मत पढ़ो. But I had to because Spectrum was something that big. So मैंने almost मार्च में ही चालू किया. मुझे बाद में पता चली है because I was not connected to a lot of people from UPSC. So I thought Bipin Chandra is a good book. But then I came to know about Spectrum. So then I thought कि यार जो चीजें इसमें फैक्चुअल चीजें हैं जो शायद बिपिन चंद्रा से कवर नहीं हो पाई है. Then I did Spectrum as well. So मैंने 2 बुक्स करी हुई हैं वैसे. वेरी बल्कि. सो वही अगेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे फ्रीडम स्ट्रगल है पूरा का पूरा 1915 to 1947. See, if you don't read Anglo-Maratha wars from it, there is a lot of information that you can skip. I'm not saying you should not. I'm saying if you're prioritizing, if you're low on time, that's what you can do. So you can read the last parts and you can read those books, dates. ये सब आप कर सकते हैं. बुक्स तो बिल्कुल पूछे जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि बिपिन चंद्रा ना आपको थोड़ा एक अच्छा स्टोरी जैसा बताती है. स्पेक्ट्रम इज वेरी फैक्चुअल. तो शायद आपको पढ़ने में मजा ना आए. मैंने बिपिन चंद्रा इसलिए पढ़ी थी क्योंकि मुझे पढ़ने में मजा आ रहा था. तो इफ यू वांट यू कैन गो टू बिपिन चंद्रा, रीड इट लाइक अ स्टोरी बुक, बट यू विल हैव टू रेफर टू स्पेक्ट्रम बिकॉज बिपिन चंद्रा डज नॉट हैव दैट मच ऑफ फैक्ट्स. आई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा ही है ना फॉर एनसीईआरटी. तो या मेरा preparation was based till the 2022 का paper, which I think I did, I did fair enough in all those previous year papers. So I was quite confident enough. But with the kind of mathematics that has come in this year, I would suggest कि आप 1-1 घंटा है ना हर रोज before 3-4 months before pre. पहले तो अगर आपको बिल्कुल your baseline, I always say this to people, आपको आपका baseline देखना पड़ेगा कि आप हो कहाँ. अब मेरे केस में ये था दैट सीसेट आई हैड अ बिट ऑफ आइडिया बिकॉज मैंने ये एप्टीट्यूड टेस्ट बचपन में भी थोड़े बहुत दिए हुए हैं व्हेन आई वाज इन माय 5th-6th स्टैंडर्ड. सो मुझे ये सब ये जो ट्रेन की स्पीड एंड ऑल ये सब जो क्वेश्चंस है ना दिस आई फेस्ड बिफोर. सो इट वाजंट दैट समथिंग वेरी न्यू फॉर मी. तो अगर आपने पहले नहीं किया है ना तो आपको वो फाउंडेशन करना पड़ेगा. अब मुझे वो जेन्युइनली नहीं पता कि वो कहाँ कैसे कर सकते हो आप. मैंने तो बचपन में जहाँ जो बुक्स थी रहती थी उससे किया था. अगर आप फाउंडेशन होने के बाद आई थिंक प्रैक्टिसिंग एवरी डे फॉर 1 hour नाउ इन द अपकमिंग प्रीलिम्स फॉर एटलीस्ट 2 months, I would suggest that because CSAT has become so extremely important that is deciding the people who are getting into the list and not. So I think you should prepare well. If you have never seen तो आप थोड़ा extensively prepare कीजिए. Yeah. So I'll go very briefly. मेंस है ना आपको लगता है बहुत पढ़ने के बारे में है. इट्स अ लॉट अबाउट रिमेम्बरिंग व्हाट यू हैव रिटन. आप 10 फैक्ट अगर एक किताब में लिख लेते हैं बट उसमें से 2 भी ढंग से याद नहीं है कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप पेपर में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे. प्रीलिम्स इज अबाउट मेमोराइजेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स बिकॉज आपको ना ऑप्शन में दिख जाएगा. तो अगर आपने एक भी बार झलक में आपको दिखा है तो शायद आप आंसर कर पाओ. मेंस में आपको खुद से सोच के लिखना है. देयर इज नो ऑप्शंस. सो यू हैव टू जनरेट योर ओन कंटेंट. सो इंस्टेड ऑफ रीडिंग 10 data points, read 3 and remember those 3. Revise those 3 10 times. So that is the key. Make very short notes. आप कोई भी एक सोर्स उठा लीजिए हर चीज का. हर चीज की पीडीएफ है. आज मटेरियल का डर्थ है ही नहीं मार्केट में. तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है या आप कोई कोचिंग को फॉलो करते आ रहे हैं एंड यू हैव अ ट्रस्टेड सोर्स तो आप देख लीजिए या यू कैन स्किम थ्रू दी थिंग्स कि आपको लग रहा है कि ये सही है तो इसको आप यूज कर लीजिए. जैसे मैंने एथिक्स के लिए ऐसे 2-4 पीडीएफ्स देखे थे एंड देन विच एवर वन आई लाइक्ड आई पिक दैट अप फॉर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अगर आपने एथिक्स का पोर्शन देखा होगा तो वही है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, फाउंडेशनल वैल्यूज एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दैट व्हाट यू कैन डू इज आप बेसिक प्रिपेयर कर लीजिए. वैल्यू एडिशन आप कहीं कहीं से कर सकते हैं. आपको टॉपर्स नोट्स हैं, आपको टॉपर्स कॉपीज है. मैंने टॉपर्स नोट्स इतने नहीं देखे हैं बट टॉपर्स कॉपीज आती हैं. देन देर आर मल्टीपल मार्केट में ना कंसाइज एथिक्स का भी बहुत कुछ आ जाता है मटेरियल. तो आप उससे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज द मेन थिंग अबाउट मेन. सो आई विल शो यू समथिंग. जैसे अभी मैंने ये इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मेंस राइट. सो मैंने इसका एक ये बनाया हुआ है कि ये डेटा पॉइंट है. सो नाउ इफ दे आस्क अबाउट
something about gender, I have a data point to write. A lot of the times, if you have a good data point, you can make a good introduction. है ना? इंट्रोडक्शंस जिसके कोशिश करी थी मैंने कुछ चीजों का प्रिपेयर करने के लिए, बट हर चीज का नहीं हो पाया ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द टाइम. सो डेटा पॉइंट्स आर वेरी गुड टू स्टार्ट विथ, या डेफिनेशंस. सो वेर एवर एंड वॉट एवर यू कैन यूज दैट. अगेन हंगर, हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है. सो नाउ सी आई टेल यू व्हाट आई डिड. ठीक है. सो अब जैसे मैंने ये कर लिया है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. नाउ इफ माई इन माई क्वेश्चन पेपर देर इज अ क्वेश्चन ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, आई नो आई हैव मेड ऑलरेडी, तो मेरे पास हेडिंग्स ऑलरेडी हैं कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन. ठीक है, ये थोड़े हाफिजार्ड है. आई विल शो यू बेटर वन. वेट, सी फीचर्स हैं कुछ. So try to make your notes the way I did not make notes that were in paras. You'll rarely see my notes that way. And the good thing was I ended up making these in the first go itself. मैंने paras में कभी बनाया ही नहीं. तो the good thing is मेरे को आदत हो गई थी. मैंने पेपर्स कम दिए थे बट मैंने नोट्स ऐसे ही बनाए. तो आपको एक हैबिट हो जाती है ऐसे ही लिखने की. मैंने barely pointers yes, but not paras ever. So the only paras that I've written is in the essay. Otherwise, I've never written that way. So areas to address. तो अब मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया. अब कभी कुछ क्वेश्चन आ जाता है ना, तो मैं इसी को ऐसे का ऐसे मेरे माइंड में होगा कि मैंने ये पॉइंटर्स बनाए थे, तो इसमें से एटलीस्ट आई एम होपिंग मुझे 3-4 याद आ जाए. एग्जाम में ना रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है. Because there's very less time. You have to write a 10 marker in 7 minutes, and you have to write a 15 marker in, almost 10 and a half, 11 minutes. So it's very difficult that way. So what I would suggest is read less but read effectively. ठीक है, ये मेंस जीएस स्ट्रैटेजी है थोड़ा सा. आई हैव बीन ट्राइंग बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस आई हैव नॉट बीन एबल टू शेयर माय नोट्स एंड एवरीथिंग, but I'll try to do at the earliest. Another dimension I feel is, so when you talk about disaster management, right? So now आपको लगता है कि अगर 10 डिजास्टर हैं तो 10 डिजास्टर के 10 आंसर बनेंगे, but there are some points that are common to all. So when you are going into the examination hall, I had made this, right? So NDA में guidelines लिख दीजिए, आप यही guidelines है. अब मुझे बताइए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स तो सबको ही एप्लीकेबल है. तो देर इज नॉट लाइक कि मैं इसको बस एक डिजास्टर में लिखूंगी, मैं इसको हर डिजास्टर मैनेजमेंट में. सो दिस इज व्हाट यू डू, राइट? सो आई हैव मेड few 12 points कि if there is any disaster based question, I could address it this way. ठीक है, चैलेंजेस भी काफी कुछ आई फील कॉमन होते हैं, तो मैंने कॉमन चीजें लिख ली हैं. Yeah, so now what I did was, now for example, cyclones, right? So now I made keywords ki if there is a word cyclone and they are asking about it, you can do this. कि ये मैंने PDF पढ़ी थी, again one PDF that I read, so उसमें ये words लिखे हुए थे, वो मैंने मार्क कर लिए. तो ये हो गई शॉर्ट नोट मेकिंग. आपको लग रहा होगा कि पैराग्राफ्स ही करना मुश्किल नहीं है. 3 महीने में थोड़ा डेडिकेशन, नो ब्रेक्स, 10 आवर्स ऑफ कंसिस्टेंसी से हो जाएगा, अगर आप उतने डेडिकेटेड हैं तो. ठीक है, मैं बता रही हूँ यही है. द थिंग इज मेरे मेंस के यही हैं. तो ऐसा है कि मैंने ना, मुझे ऐसा, आई एम अ वेरी लेजी पर्सन इन ऑल ओवरऑल, तो मैंने प्रिंट से पढ़ा. अब जैसे कि मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आप कोई भी कोचिंग की एक PDF उठा लीजिए जो भी आपको अच्छी लग जाए, उसमें कॉमन पॉइंट्स तो दिए ही होंगे, बहुत सारी आ जाती है यार आजकल टेलीग्राम पे. तो देयर वाज अ ग्रुप हमारा जो SFG करके एक ग्रुप था. सो उसमें काफी कुछ आ जाता था मटेरियल. सो आई यूज्ड टू रेफर टू दैट. तो मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लिया 2-3 दिन में, फिर मैंने इसको कंसाइज कर लिया. हाँ, नहीं, नॉट द थिंग इज टिल इफ 15 डेज जब आप पढ़ोगे ना पहले, या आप बिल्कुल टेस्ट देने जा रहे हो, तो ये पढ़ के जाओगे. सी आई हैव ट्राइड टू रिवाइज फ्रॉम द PDF व्हेन आई हैव हैड द टाइम. सपोज कीजिए मेरा फर्स्ट रीडिंग हुआ है, उसके बाद सेकंड रीडिंग मैं डिजास्टर से करूंगी, फिर जब मैं थर्ड बार करूंगी ना, तो मैंने ये बनाए हुए 2 बार, तो मैंने ऐसी PDF से थोड़ा पढ़ लिया कि अच्छा ये है, थोड़ा आपको भी होना चाहिए. उसके बाद ये नोट्स बन जाते हैं, तो उसके बाद मैंने यही रेफर करा है. उसके बाद यू डोंट हैव टू गो बैक टू द PDF. सी द पॉइंट ऑफ द नोट्स इज दैट यू डोंट हैव टू गो बैक टू इट. सो मेक नोट्स दैट आर, मतलब आपको समझ आ जाए. बहुत सारे शायद आपको ना, मेरे नोट्स नहीं समझ आएंगे, क्योंकि मैंने जिससे पढ़ा है उससे मैंने बनाया है ना, मेरे दिमाग में तो वो पढ़ा हुआ है 2 बार. ठीक है.
So again, water के लिए I have written a few data points and I've written a lot of schemes कि exactly क्या क्या होता है उसमें. So because water is a good topic, see now I have given ki most common challenges that you need to think. So if there is a question on any policy scheme, आपके basic challenges same है. There is going to be some schemes जहाँ पे आपने पढ़ रखी होगी. जैसे मुझे लगता है कि कुछ नीति आयोग के इनिशिएटिव्स हैं जो बिल्कुल ही मतलब पूछ लेते हैं ये लोग. स्मार्ट सिटीज है, तो स्मार्ट सिटीज इज समथिंग दे आस्क, तो आई वुड से आप उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए स्मार्ट सिटीज वाला टॉपिक. बट सपोज कीजिए दे आस्क यू अ रैंडम स्कीम दैट यू डोंट नो ऑफ, then what would you do? So this is not for a very particular scheme that is very famous, such as a smart city. They would expect you to know about smart cities because it's a very big government initiative. But if there is a scheme that you have never read or you don't know much about, this is the approach कि यार क्या क्या challenges system में कि ये वो होंगे, वो आप देख लीजिए. यार क्या है ना, आप मेरे को बताओ एग्जामिनर को क्या चाहिए. आप द प्रॉब्लम इज वी थिंक दैट द मोर यू रीड द बेटर यू विल राइट, बट यू विल रियलाइज दैट इन द एंड नो मैटर हाउ मच, वो मैं बता रही हूँ पॉलिटी में आप कितने केस स्टडीज पढ़ लो, आएगी केशवानंद भारती आपको याद आएगी एग्जाम में. You are in so much of stress. You have to think in half a minute. I'll give you a timer right now. You give me something in 30 seconds of anything that you've read. That's a little bit very. तो ये जो है ना, अगर आपके कंसाइज होंगे ना तो ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. तो मैं उस फोमो में नहीं गई कि मैंने ये मटेरियल नहीं पढ़ा, वो मटेरियल नहीं पढ़ा. मुझे पता था जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं रिप्रोड्यूस कर सकती हूँ बस. मुझे बताइए ना कि वही है. मैंने एक अभी जो इंटरव्यू किया था बीच में, आपको क्या लग रहा है डिमांड क्या है एग्जामिनर, उसको क्या फर्क पड़ता है आपने कितना पढ़ा है और हाउ मेनी पीडीएफ्स. ही इज नॉट गोइंग टू चेक एंड कम एंड चेक यू कि यू रेड 5 पीडीएफ्स एंड यू रेफर्ड टू 20 सोर्सेस. भाई बहुत पढ़ता है बंदा, इसको मार्क्स दे दो, नहीं. आप वहां क्या करते हो ना, उससे फर्क पड़ता है उसको. ठीक है, तो आपकी प्रेजेंटेशन, आपका फॉर्मेट, आई वॉज ऑलवेज दिस क्लियर इन माई माइंड व्हेन आई स्टार्टेड. तो मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग इज अ स्किल, you have to learn that. And in UPSC, I always tell this, please, I have never considered myself who knows a lot. And I will not say that on any platform that I know everything. Today also, if you ask me, I'll say I don't know. And मैं इंटरव्यू में बोल के आई हूँ, मुझे नहीं पता. तो आपकी ऑनेस्टी जज कर रहे हैं, कैसे पता होगा. हर एक इंसान को सब पता होना तो दुनिया में ही इम्पॉसिबल है. तो आप ये कंसिडर कीजिए जो बेयर मिनिमम है ना, उसको कवर कीजिए. जो बेयर मिनिमम ये सिलेबस, एंड व्हाट यू आर सेइंग फोमो ना, सिलेबस को स्टिक कीजिए. सिलेबस इज एक्चुअली योर की. अगर आप सिलेबस के, आपको एक भी बार लगता है ना कि सिलेबस के बहुत बाहर जा रहे हैं, तो प्लीज उसको रोकिए. मेरे पास 3 महीने का टाइम था ना, तो इट वॉज अ बून, क्योंकि मुझे पता था मैं बियॉन्ड इसके नहीं पढ़ सकती. तो इसीलिए सिलेबस को स्टिक कीजिए. इफ यू स्टिक दैट वे, आई थिंक यू विल डू वंडर्स. ओके, ठीक है. सो आई टेक अ लिटिल फास्टर. सो आई जस्ट शो यू, जैसे मैंने बताया कि फॉर सम टॉपिक्स आई हैड मेड इंट्रोडक्शन. सो ये है ग्लोबलाइजेशन का. सो अब मुझे पता है कि इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ग्लोबलाइजेशन, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन द इंट्रोडक्शन. आई विल मेक अ डायग्राम एंड आई विल शो कि व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज. बट वेरी फ्यू टॉपिक्स, अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि मैंने बहुत कम चीजों के लिए इसको बनाया था. अगेन अ लॉट ऑफ डेटा एंड एवरीथिंग विच इज देयर आई वांट टू शो. अब जैसे ये रीजनलिज्म है ना, आई एम शोइंग यू. तो जैसे आप GS1 के लिए रीजनलिज्म ये टॉपिक पढ़ते हैं, तो मैंने क्या करा था कि आपने जो PDF से पढ़ा है ना, उसके शॉर्ट नोट्स हैं, ये देखिए वन वन इसमें. अब उस PDF में ना बहुत कुछ लिखा होगा, तो मैंने पॉइंटर्स लेके बना दिए. ठीक है. सो जैसे आई टोल्ड यू कि यू नीड to have something that you can revise on the last day. So I've scored well in GS2. So GS2 के ये जो होता है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आप कहीं मेंशन कर सको, तो ये उसकी मैंने एक PDF आई थी, उसमें मैंने मेरे थोड़े वैल्यू एडिशंस कर लिए. ठीक है, मैंने मार्क कर लिया. सो मैंने ज्यादा नहीं करा था, बट मैंने जो मेंस 365 से ये करना है. सो जैसे मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है कि ये केस क्या है क्या नहीं. सो आप इसे, आई वुड जेन्युइनली से डिजिटल नोट्स आर वेरी वेल दैट वे, बिकॉज यू कैन एडिट द PDF एंड एवरीथिंग. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. प्लीज डोंट मेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग. देयर इज सो मच इन द मार्केट. आप कुछ भी उठा लीजिए, इट्स अ गुड मटेरियल एज लॉन्ग एज यू कैन रीड इट. So I'll do very short, mein I'll do ethics.
सो अगेन एथिक्स, द फर्स्ट थिंग आई वुड से कि यार प्लीज क्वेश्चन जो है ना उसको सिलेबस से रिलेट करने की कोशिश करिए, सिलेबस बाय हार्ट करिए। जब क्वेश्चन आता है तो अपने आप को पूछिए कि ये मुझे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के बारे में पूछ रहा है, मुझे एटीट्यूड के बारे में पूछ रहा है, एप्टीट्यूड के बारे में पूछ रहा है। व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड डिमांड क्या है। क्वेश्चन को सिलेबस से रिलेट करिए। ये मैंने सब जीएस के लिए नहीं किया था, बट कोर के लिए मैंने स्पेसिफिकली किया था कि अगर कोई क्वेश्चन है तो वो किस सिलेबस पार्ट, और ये पीवाईक्यू से कीजिए, है ना। क्या होता है कि जो कोचिंग वाले कभी कभी होते हैं या टेस्ट पेपर होते हैं, दे माइट नॉट बी वेरी आपको बिल्कुल रिलेट हो जाए। सो यू शुड डू पीवाईक्यूज के साथ ये एक्सरसाइज विथ एथिक्स, ठीक है। सो एथिक्स यार अगेन, quotes, keywords, you should make notes of your own. If you cannot, there are multiple toppers who have done it. प्लीज रेफर टू देम। जैसे मैंने एग्जाम्पल्स एक जगह लिख लिए थे, तो ये मेरे कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है। सो नथिंग वेरी डिफरेंट दैट आई थिंक एनी अदर टॉपर वुड से अबाउट एथिक्स। Essay, I'll show you. So essay, actually, I do not have a lot of strategy because I think there are some intangible things in the preparation. There are some things that you know and you cannot explain. How do you know that? So I was good at a bit of creative writing. मतलब मैंने कभी करी नहीं थी पहले, बट मुझे बचपन से थोड़ा बहुत शौक था, तो मैं वो जो essay writing competitions होते हैं, I used to participate. So I had a gist of it of how to write a good essay. And the good part for me was that now UPSC is asking a lot of philosophical essays. So there is a lot of scope for your creativity. In a technical topic, if something comes up, you're very less to write. But when it's a broader topic, such as a ship, in the is not there in the harbor, I'll show you. So this is a bit of structuring आप कैसे, but I don't think this is applicable to any. मैंने ये बस बनाई थी start में, but this is not applicable to anywhere. So you can start your intro with an anecdote or whatever you want. I usually start with anecdotes. So you see, now I had made some of these poems and everything. So this poem of Robert Frost can be applied to these many topics. So have content that can be repeated in multiple places. कितना याद रखोगे? ह्यूमन ब्रेन है, एंड में आपको बहुत चीजें याद नहीं आ पाएंगी। तो ऐसा कंटेंट चूज कीजिए जो थोड़ा ब्रॉडर हो और आप उसको मल्टीपल जगह यूज कर सके। मुझे बिल्कुल बहुत सही लगता है थोड़ा ये कोट्स और पोएम्स, ये सब मुझे बहुत फन लगता है, तो आई यूज टू। सो नाउ आई हैव पुट इन दिस थिंग कि जैसे अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर। कैन समवन टेल मी व्हाट द कोट एक्चुअली मीन्स इन वेरी शॉर्ट? आप इससे क्या कंक्लूजन डिराइव करेंगे लाइफ का? ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट एन essay writing is you should understand the topic. If you know the quote or if you do not understand the statement, you cannot write an essay. So I know that this is a lot about how you step out of your comfort zone and how you take risks. So अब मैंने क्या किया है, I'll show you something. So अब आप हर जगह comfort zone ये word नहीं यूज कर सकते, है ना। तो आई हैव मेड सिनोनिम, सेफ जोन, कंफर्ट जोन, प्रेडिक्टेबल, ये एक्सरसाइज थोड़ी करी हुई है यहाँ पे। तो थ्रू आउट योर essay you can use these words. Again, these things जो है कि अब रिस्क लेने से क्या होगा, इवॉल्व, ग्रोथ, इनोवेशन, डिस्कवरी, एवरीथिंग। सो दीज आई हैव रिटन, है ना। मैंने थोड़ा ये हैफजार्ड लिखा है, मुझे अब खुद समझ नहीं आ रहा मैंने क्या सोचा था। सो आई विल जस्ट गिव यू अ जिस्ट कि हाउ आई यूज टू प्रिपेयर फॉर एनी essay. ऐसे में एक तो होता है फेवरिंग वाली चीज, लिख दो कि ये कोट क्यों सही है, और एक लिख दो कि ये कोट क्यों पूरी तरीके से सही नहीं है। बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ टू एनीथिंग। सो यू विल ऑलवेज, आई थिंक दैट पर्सपेक्टिव हैज टू गो टू द एग्जामिनर कि यार ये बोल तो रहा है बट ये शायद सारे सिचुएशंस में एप्लीकेबल ना हो, ठीक है। सो दैट आई थिंक यू कैन डू इन एवरी essay. यार मैंने नहीं करा था। द थिंग इज ना, मैं अभी एक वही टॉक दे के आई हूँ। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी इंटेंजिबल। अब मैंने ओवर द इयर्स कुछ चीजें पढ़ी हैं, या मैंने कोई मूवी देखी है, उसका डायलॉग अच्छा लग गया, एंड essays आर वेरी क्रिएटिव। आई हैव मेंशन्ड इन वन, नॉट द फाइनल वन, बट in one of my essays that I wrote for practice, I wrote about Taylor Swift and everything because I am a huge fan of Taylor Swift. So you can use that thing very effectively. आपको ना हर dimension of life आप इसमें you can bring it alive in this
content, and that's why I love to write essays. Although I have not मतलब मुझे बहुत थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेड था, बट आई थिंक इस साल पता नहीं शायद ऐसे बोल रहे हैं लोग, बट आई से कि आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर, मे बी आई शुड हैव डन बेटर इन दैट वे. सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना ना थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग, this is the fun part of mains. This is the most fun part you'll have, because see, there is one thing which is static and you're remembering facts and answer. This is such a fun part कि आप अपने आप को एक पर्सपेक्टिव देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ. तो यही तो है फन पार्ट. तो ये करने के लिए एवरी संडे उठाइए और कोई भी एक टॉपिक पे लिख दीजिए. अब आप उसको, अगर आपको लग रहा है कि आपका लाइफ एक्सपीरियंस कम है in that sense, if you are a very beginner and you've not had, I would say that I have had a bit of experience that has helped me. Like I've gone through a lot in my MBBS that way. So मुझे वो एक perspective आ गया है about a lot of things. So I can relate with risk taking a lot. The reason why I can write this essay well is because I know I have taken risks. My biggest risk taking was that I shifted from a career of MBBS to, यूपीएससी. सो दैट्स अ वे, बिकॉज ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है तो इस पर मैं बेटर लिख पाऊंगी. बट अगर आपके नहीं है तो हाउ टू डेवलप, रीड बुक्स. That is how you go. You want to travel, if you are, if you're preparing for a 2025 attempt, travel, डू न्यू थिंग्स. आई थिंक यूपीएससी में ना वो लाइफ एक्सपीरियंस बहुत काम आ जाएगा आपका, क्योंकि इस प्रेपरेशन में इतनी इनटैंजिबल चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, कि जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ अपनी लाइफ सीखी है, जो यहाँ इस्तेमाल की है मैंने. तो अब वो ऐसे राइटिंग का यही है, बस एक स्ट्रक्चर है, बाकी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है. तो उस हिसाब से ठीक है. आई थिंक आई हैव कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली. इफ यू हैव क्वेश्चंस. हाँ, तो अभी जैसे क्या होता है, आंसर राइटिंग का एक अप्रोच होता है. पेस्टल, आई डोंट नो, आई थिंक इफ यू हैव डन वेल, सो यू नो दैट दिस पॉलिटिकल डिमेंशन, इकोनॉमिक डिमेंशन, सो आई नेवर क्रैम दीज थिंग्स. अगर आप मुझे एक चीज बता दो, उसके ऊपर मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, एवरीथिंग मैं आपको एक एड्रेस कर दूं, इवन इफ आई हैव नॉट रेड इट. सो व्हेन यू आर रीडिंग योर नोट्स, आप इसको इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि अच्छा ये इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ये इसका सोशल, क्योंकि आपको पहले तो क्या लगेगा मैं क्रैम कर रहा हूं. तो इसको मिटाने के लिए क्या कीजिए ना, कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन सेंस है ना यार. अब मुझे बताइए, इंडिया में R&D की कमी है, तो ये है, हर जगह है, ये एक एस्पेक्ट में नहीं है. आप हर स्कीम, हर चीज में ये चीज को एड्रेस कर सकते हैं कि ये बड़ा चैलेंज है. हमारे यहाँ फंडिंग की चैलेंजेस होती हैं, हमारे यहाँ R&D की चैलेंजेस है, हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की चैलेंजेस है, ग्राउंड रियलिटीज है. तो ये कॉमन सेंस है, ये आप क्रैम करने की जरूरत नहीं है. क्रैम क्या कीजिए पता है, डेटा पॉइंट्स, कीवर्ड्स, फ्रेजेस, इंफॉर्मेशन ना. आप अगर एक कोई टॉपिक, मुझे एक पीडीएफ अगर आपके पास हो ना, तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगी. यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर, मतलब ठीक है, हाँ ये तो पता है, ये तो है ही. इसमें सोचने वाली क्या बात है. I'll try better explain it to you if you have a particular topic कि कैसे करना है. So I think a lot of the things are very basic things, very common things, कि ये तो पता है हमको. तो आप उसके डेटा पॉइंट्स पढ़िए. अभी वुमेन का टॉपिक, आई गिव यू एन एग्जांपल. यू नो अबाउट पेट्रियार्की, you know about the gender gap, you know about the inequality, you know what women are facing with crimes, you know the legislative part की कहाँ कहाँ है. तो मुझे बताइए, इसमें आपको रट्टा मारने की तो जरूरत ही नहीं है. Who bombarded the knowledge? कौन सी चीज बताइए ना आप मेरे को आप डिफिकल्टी एक्सप्लेन करेंगे. देखिए, मुझे अगर कोई अब वुमेन बोलता है ना, तो मैंने जो आपको ये बताया ना, मेरे दिमाग में ये सब आता है कि यार उनका पे की वजह से है, तो किसी पे कमीशन ने कुछ बोला है क्या, ILO ने कुछ बोला है क्या, ये सब आएगा. इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, केयर इकोनॉमी में आ जाता है. तो वुमेन के ऊपर अगर आप बोलोगे तो मेरे पास ये एस्पेक्ट, सी, आप GS के PYQs देखिए, आपको समझ आएगा ये ब्रॉडर एस्पेक्ट है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीश सवाल पूछ रहे हैं वो लोग, वेरी फ्यू. एंड इवन इफ देर आर, तो आप उसको जनरल बना दीजिए, बिकॉज इट इज जनरल स्टडीज. So you can take that general, dimension to your paper, is what I feel. So if you think you're cramming too much, please don't do that. Most of the things ना मैंने क्रैम नहीं करी हुई है. जो अंडरस्टैंडिंग से आपको याद रह जाएगा, वो सोशल इश्यूज में तो मुझे नहीं लगता डेटा पॉइंट्स के अलावा कुछ होता है. सोशल इश्यूज आप जानते हैं, जीरियाट्रिक के बारे में क्या होगा कि वो लोग डिपेंडेंट है, बट अब ये कितने डिपेंडेंट है उसका डेटा पॉइंट बता दीजिए.
ठीक है, आपको पता है कि उनके साथ साइबर क्राइम ज्यादा होते हैं क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी की आइडिया है। यार ये सब तो आप रोज के इसमें ही देख लोगे। सो व्हेन यू से जीरियाट्रिक, आपको लगता है अरे दिस इज सच अ बिग टॉपिक, बट यू जस्ट हैव टू लुक अराउंड इन टर्म्स ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स एज वेल कि क्या हो रहा है करके। ठीक, इफ यू हैव अ स्पेसिफिक टॉपिक आई विल एड्रेस दैट। तो यार देखो, मुझे लगता है, मैंने तो ये पता नहीं आपके बैच को बताया नहीं, मेरा फिक्स था मैं 2 अटेम्प्ट दूंगी। मेरे लिए 6 नहीं 2 ही थे। मैंने सोच लिया था ईगो पे नहीं लेना इस चीज को, तुमने एमबीबीएस करी हो, तुमने कुछ भी करा हो, दिस एग्जाम इज इन अनप्रेडिक्टेबल। दिस एग्जाम देर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बिकॉज 3 स्टेजेस है। आप एक स्टेज में फेल हो जाओ, आपको फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। इट्स नॉट जीरो एग्जैक्टली, बट यू हैव टू रीस्टार्ट। सो व्हाट माय थिंग वाज, आई न्यू दैट आई ऑलरेडी हैव अ गुड बैकग्राउंड and I would love to work even in medicine as in that manner. So I would have been happy to give up after 2 attempts. आप आपकी लाइफ से आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि यार, इफ यू आर प्लानिंग टू गिव एवरी अटेम्प्ट, आप अभी से डिसाइड करिए कि आप कितने अटेम्प्ट देंगे। डू यू वांट टू फिनिश ऑल? इफ दैट इज योर थिंग देन गिव ऑल। इफ नॉट, देन अगर सपोज करिए 6 के बाद भी नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, वो प्लान करिए। बिकॉज होता क्या है ना, आई ऑलवेज हैड इन द बैक ऑफ माई माइंड, इफ दिस डजंट वर्क आउट आई हैव समथिंग, एंड दैट हेल्प्स। सम कोई बोले ना बोले, ये मोटिवेशनल वीडियोस की नीनी यही करना है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं काम क्यों रह पाई इन दी एग्जाम। why if somebody's life is on the line, I will not expect कि वो पर्सन काम होगा। So I would say have a good, I had plan C, not just plan B but a plan C, and I think that is how well prepared I was कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो be prepared, have a clarity of thought, and again I'll repeat this, it's not the end of the world. I am talking to you this because जब मैंने दिया था ना, तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था लिस्ट में ना। मैंने ये सोचा था यार सेकेंड अटेम्प्ट दूंगी उसके बाद खत्म। तो आपको ये जानना है कि आपकी आइडेंटिटी एक एग्जाम से नहीं है ना। आप जो पर्सन बनोगे वो वैसे भी बनोगे थ्रू द जर्नी एंड एवरीथिंग। आई सेड दिस इन विजन ऑल्सो। 15th को आई वॉज द सेम पर्सन एज आई वॉज ऑन 17th of April, बिफोर एंड आफ्टर जस्ट 1 day। आपको लगता है 15 से 17 में बिल्कुल आदमी चेंज हो जाता है? नहीं होता है। तो आई एम स्टिल द सेम पर्सन। सो यू कैन डू बेटर इन एनी फील्ड यू गो। इफ यू हैव डन यूपीएससी, आई हैव दैट फीलिंग कि अगर आपने 1 साल भी प्रेपरेशन करी है ना, तो you have that broader aspect in life. You have resilience, you have perseverance, you have everything. आपको you have to go through a lot, that means is itself in a very big exercise. So you can do well, but plan. Don't be somebody who does not plan, because that plan gives you that confidence कि it's okay, it's fine, and you have to say that I have told myself कि मैं I will be fine even if I don't clear. So you have to tell that to yourself. See, because nobody else is going to do this for you. People only come when you've succeeded, or people will blame you when you have not. So don't बिलीव ऑन अदर पीपल कि मैं क्या करूं, दूसरों का प्रेशर मत लो, बट आपको खुद को ही क्या लगेगा वो सोचिए, और आप प्लान करके रखिए कि यार नहीं हुआ इन केस तो मैं क्या करूंगा। ठीक है। This one doubt by Akash. Yeah. Ma'am, can you explain why you get that good rank with much less time compared to others? ओके, सो आई जेन्युइनली विल से मुझे भी नहीं पता। बिकॉज द प्रॉब्लम इज, आपको आंसर शीट तो नहीं मिलती इवेल्युएट होके कि मैंने कहाँ बेटर स्कोर किया है, तो आप अंदाजा ही लगा सकते हो कि कहाँ क्या सही कर गए आप। तो मैंने जो ये चीज प्रिपेयर करके लाई है, वो इसी इससे लाई है कि मुझे लगता है ये मेरे लिए काम कर गया। वॉट आई डिड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वॉज दैट मैंने बहुत नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि लोगों के इतने नोट्स हो जाते हैं, फिर ये हो जाता है कि यार क्या पढ़े क्या नहीं। तो मुझे आई डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट थिंग टू पिन पॉइंट दिस वर्कड, बट आई कैन टेल यू व्हाट कुड हैव वर्कड। सो आई थिंक यू कैन जस्ट टेक स्निपेट्स फ्रॉम माय थिंग्स दैट आर एप्लीकेबल टू यू एंड अप्लाई इट इन योर अटेम्प्ट्स फर्दर। मैंने विजन में दी थी, GS2 में मुझे इस साल 117 हैं, उनकी टेस्ट में मुझे 75 थे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आपको ना ब्लाइंडली take everything in this preparation with a pinch of salt. I will say even what I'm saying, take it with a pinch of salt कि आपको जरूरी नहीं है एप्लीकेबल होगा। तो अगर विजन वाले मुझे कुछ बोल भी रहे हैं ना, तो मैं खुद से इवेल्युएट करती थी कि यार मुझे लगता है ये बेटर कर सकता। आई हैव डन माई मेन्स विद सेल्फ इवेल्युएशन।
you have to understand आप, क्योंकि nobody will tell you what you are doing wrong better than you. So what I used to do was I used to write answers. मैंने PYQs लिख लिए एक दिन के 8, ठीक है, every day I used to do that practice. I've given less mocks but I've written PYQs, so I'll address that as well. I believe that PYQs क्वेश्चंस ही उनके इतने अलग होते हैं यूपीएससी के कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन द कोचिंग्स टू रेप्लिकेट द सेम वे. सो द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस अगर आपने कभी लाइफ में पीवाईक्यूज नहीं करे हैं तो प्लीज करिए, और करे भी हैं तो भी दोबारा करिए, क्योंकि आप यूपीएससी की तरह सोचेंगे ना, वो क्या पूछता है वो वही चीज पूछता है, ठीक है, थीम्स उसमें से पता भी चल जाती है. सो आई यूज टू रीवैल्यूएट द नेक्स्ट डे, एंड इनिशियल प्रैक्टिस में तो यू विल रियलाइज ओ माय गॉड व्हाट वर्स थिंग्स आई हैव रिटन एंड आई हैव नॉट इवन अटेंडेड टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि पूछा क्या और मैंने कुछ और ही लिख दिया. तो ये होगा, स्टार्ट में होगा, बट इवेल्युएट कैसे करते हैं कि आपको लग रहा है डिमांड जो पूछी थी वो मीट हुई है, जो उसने पूछा था उसमें वो मैंने लिखा है, वो हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में मैंने लिखने की कोशिश करी है. तो ये आपको खुद करना पड़ेगा. अब वो कोचिंग वाले आपको 75 दे, 90 दे, 110 दे, 111 दे, आई वुड स्टिल से कि एथिक्स में आई यूज्ड टू स्कोर गुड इन विजन, ठीक है. सो इट गेव मी अ बूस्ट ऑफ, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट. बट मैंने ऐसा भी नहीं था कि आई वॉज अंडर कॉन्फिडेंट कि उन्होंने मुझे इसमें 75 दे दिए, या उसमें उसमें से मैं इवेल्युएट करती थी कि अच्छा मैंने ना ये आंसर में ऐसे लिखा है, दिस शुड हैव बीन बेटर दिस वे. सो दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू. मार्क्स, I always say this, marks are very weird way of testing your evaluation. You have to evaluate where you're going wrong, and that is the best you can do. One student is asking that क्या एवरेज स्टूडेंट भी यूपीएससी सीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है? बहुत डिफिकल्ट है और बोला जाता है कि यूपीएससी बहुत टफेस्ट एग्जाम है, एवरेज स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर सकता है, और ऐसा बोला जाता है बहुत कि यूपीएससी में अपना टाइम वेस्ट मत करो. See, this will be an understatement, but again, average, above average, intelligent, smart, सब्जेक्टिव चीजें हैं. मुझे नहीं लगता था टिल टू अ वेरी सर्टेन एक्सटेंट, मुझे अभी भी यही लगता है कि आई एम अबव एवरेज बट आई डू स्मार्ट वर्क. दैट्स व्हाट आई एम. I have there are people who have read way more than I have read. Probably they have had 4 or 5 years of. There was a topper today with me, Ritika Verma. She has had an experience of 4 mains. So I think she must be way well read than me. ठीक है. सो एग्जाम क्लियरिंग की स्ट्रैटेजी और उसकी डिमांड अगर आपको वो आ जाए, आपको वो समझ आ जाए, तो एवरेज स्टूडेंट क्या कोई भी स्टूडेंट क्लियर कर सकता है. बट आई विल स्टिल से कि अगर आपने ऐसी चीजें कभी फेस नहीं करी है लाइफ में, आई एम नॉट ब्रैगिंग बट आई एम ट्राइंग टू पुट इन टू पर्सपेक्टिव कि एमसीक्यू सॉल्विंग वॉज नॉट न्यू फॉर मी. दिस इज वॉट आई हैव डन सिंस माई 3rd grade. तो मैंने इतनी एग्जाम्स दी हुई हैं एमसीक्यू वाली कि ये कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए. दिस वॉज अनदर एमसीक्यू एग्जाम बट स्ट्रैटेजी अलग थी. तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने अगर बचपन से, तो आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि आपका बेसलाइन वहां होगा, बट आई वुड से कि विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड, मतलब क्या कहते हैं ना, गुड स्ट्रैटेजी, आप वो कर सकते हैं. वेदर इट्स 1 year, 2 year, 3 year, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू डू इट. या One is asking that I've also joined Anthropology Foundation 2023 in October. Yeah. So would you suggest giving attempt for 2024 or should I wait for more value addition? अब भी ज्वाइन किया है, मतलब मैं. Yeah, 2023 October. यार देखिए, अटेम्प्ट अगर आपको लग रहा है, प्री का अटेम्प्ट शुड बी बेस्ड ऑन योर प्री का प्रेपरेशन, नॉट योर मेंस. द प्रॉब्लम इज वी ऑलवेज थिंक कि मेंस प्रिपेयर नहीं हुआ है, प्री कैसे दे. भाई प्री तो निकाल लो. नहीं निकल रहे लोगों के, मतलब जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा हुआ है और काफी जीएस में अच्छे मार्क्स है उनके. इट्स एन एक्सपीरियंस. इफ यू डोंट क्लियर यू विल गेट एन एक्सपीरियंस. इफ यू क्लियर यू हैव अ चांस एट मेंस. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. If you think you are prepared, see, I did not give my first attempt in 2022. I was, because मुझे पता था मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने पॉलिटी इकोनॉमी के बस बेसिक पढ़े थे, उसमें भी कभी पीवाईक्यू कुछ नहीं किया. तो मैंने बोला ये वेस्ट नहीं करूंगी मैं. तो क्योंकि मैंने 2 ही अटेम्प्ट सुने, मैंने चूज किए थे, तो मुझे पता था मेरे दोनों प्रेशियस है, तो मैंने इसीलिए पहला अटेम्प्ट नहीं दिया. बट इफ यू आर समबडी who's done a bit of basic reading and you still have 2 months, I'd suggest you should do it. One last doubt is that, ma'am, is background in science necessary for taking anthropology as an optional? No, I don't think so. The only thing is there will be certain topics that will be a lot easier for a science background student to understand in anthropology than a non-science background. ठीक है. तो बस वही है कि अगर आपका साइंस है तो आपको जेनेटिक्स थोड़ा बेटर समझ आ जाएगा जल्दी, एंड द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट जो है, अगर आपने पहले ही बोन्स पहले पढ़े हुए हैं तो वो थोड़ा बेटर आ जाएगा.
What is your timeline for GS mains reading, revision notes making for mains? It looks overwhelming to complete in limited time. So again, the problem with us is that we make multiple notes. If you are doing it in your before pre, आप उसको भी कंसाइज करिए, प्रायोरिटाइज करिए, जो आपको लगता है हार्डर टॉपिक्स हैं जो आप याद नहीं रख पा रहे हैं उसके नोट्स बना लीजिए. मेंस के टाइम पे आपको कंसाइज नोट्स बनाने पड़ेंगे. सो माय टाइमलाइन तो वाज 3 months, माय ओन टाइमलाइन. सो आई डू नॉट नो मच अबाउट नोट मेकिंग अदर देन दैट. देखो, मुझे लगता है कि जितना मुझे समझ आता है इस फील्ड के बारे में, देर आर वेरी फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट. बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है. मुझे लगता है वो चीज, मैंने अभी विजन में भी बोला, मैंने बोला यार तुम लोग पक्का बोलोगे ये लड़की बहुत फेंकती है, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जो आपको कोई दूसरा शायद अग्री नहीं करेगा. बट आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे झूठ बोल के मुझे बताइए, मैं आपको मिसगाइड करके, देयर इज नो पॉइंट इन दैट. सो आई एम शेयरिंग माई थिंग्स as honestly as possible. दूसरी चीज, if you are somebody who has empathy, I was probably not as empathetic as before, my MBBS, but because of my experiences I saw a lot of things कि यार लोग जो situation से जाते हैं, I am very privileged where I am, and I understood that this is something that I want to solve. This is something that मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बाकी चीजों से, but if I help this one person, it will be so much of my satisfaction कि मैं खुशी से सो सकूंगी कि यार मतलब अच्छा काम कर दिया तुमने. तो यही क्वालिटीज है यार. बाकी तो आपकी इंटेग्रिटी है, थिंकिंग है, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग है जो मैंने सिखाया, कि एज एन ऑफिसर यू विल हैव टू थिंक इनोवेटिवली, आपको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा. सो एसेज आर अ वे ऑफ डेवलपिंग दैट क्वालिटी कि आप सोचें, क्योंकि आपका खुद का एक ओपिनियन होना चाहिए हर टॉपिक पे. वो इंटरव्यू के टाइम तो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब यू हैव टू रीड एक्सटेंसिवली. सो if you want to become, if you are asking, I think having honesty, being honest to yourself and being empathetic are the two qualities I feel should be there in a person. अगेन मुझे लगता है डाउन टू अर्थ होना, और दूसरी बात, ईगो पे तो बिल्कुल नहीं लेना ये सारी चीजें, कि मैं तो इतना स्मार्ट हूं बट मेरी एग्जाम नहीं क्लियर हो रही. कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी की अपनी जर्नी होती है, आपका लाइफ कहीं और लिखा होगा. तो ये सारी चीजें ना एक्सपीरियंस से ही आती है. तो इफ यू आर देयर, या सी आई विल नॉट क्वालिफाई दीज टू, है ना. मैं ये मानती हूँ कि देश का करने के लिए यूपीएससी देना जरूरी नहीं है, ठीक है. आप बहुत चीजें हैं जो कर सकते हैं. मेरे को पता था पीजीए एक है, बट मुझे पता था यूपीएससी एक बेटर प्लेटफॉर्म है. तो ये नहीं कि बस आप एकदम वो इससे आ रहे हैं बट आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है. मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि दोनों लोग अलग अलग हो सकते हैं. कि जो चिल आउट बंदा है, एग्जाम की तरह ले रहा है, ठीक है, उसकी स्ट्रेटेजी सही होगी, ठीक है. मे बी his mindset is just to get through and he has some power and everything. So they might get through. I'm not saying they might not, but I'm saying कि ये जो बंदा फर्स्ट वाला बोल रहे हो कि he wants to work, तो उसकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए. आपको ये समझ आना चाहिए कि एग्जाम में करना क्या है. इट इज एन एग्जाम, इट इज एन एग्जाम, बट एक लेवल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेसलाइन मुझे लगता है थोड़ा हो जाना चाहिए. दैट्स व्हाई आई हैव अ वेरी unpopular opinion कि if you're in college, experience college, you will learn a lot in college from people. People will come and cheat you. They will, मतलब आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिससे आपको सीखने मिलेगा कि चलती कैसी है दुनिया. अगर आप you're an 18-year-old, there are people from 12th standard asking me कि मैम कैसे प्रिपेयर करें. I said यार पहले आप ग्रेजुएशन करिए, आपको एक लाइफ का बेसिक एक्सपीरियंस आने दीजिए, बिकॉज यू टेल मी एज एन ऑफिसर यू विल हैव टू डील विद पीपल एवरी डे. सो आई थिंक ये दो लोगों से ज्यादा मैं एक तीसरे इंसान को बोलूंगी, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो कॉन्फिडेंट है, जिसके पास सेवा करने की या सर्विस या टू डू समथिंग गुड. आई एम नॉट इवन सेइंग फॉर द कंट्री, आई एम जस्ट सेइंग कि यार यू कैन गो टू एन एनजीओ एंड यू कैन डू गुड, ठीक है. सो टू वर्क फॉर द कंट्री यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इन यूपीएससी. इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म, यू कैन डू समथिंग एल्स एज वेल. सो वो आपकी अगर चाह भी है तो बहुत रास्ते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उसी से पूरा होगा. एंड डेडिकेटेडली थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम है, उसको एग्जाम की तरह लीजिए, बट ऑल्सो ब्रिंग इन योर एक्सपीरियंसेस इनटू इट. तो आई थिंक दैट समराइजेस द एग्जाम. मैंने वेरी ऑफ बीट बुक, सो नितिन सिंघानिया सर हैं जिनकी आर्ट एंड कल्चर की आती है, उनकी एक इकोनॉमिक्स की बुक आती है.
सो आई फाउंड कि उन्होंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली प्री का और मतलब आप मेंस में भी यूज कर सके ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, एंड चैप्टर वाइज बिल्कुल सही है, तो मैंने वो करी थी. इफ यू आर कंफर्टेबल विद समथिंग एल्स यू कैन रेफर दैट. हाँ, तो मेरा ऐसा रहा कि मेरा मोस्टली एकेडमिक बैकग्राउंड से, बिकॉज आई वर्कड इन कोविड एंड ऑल, एंड दैट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू टॉक अबाउट. सो मेरा इंटरव्यू मोस्टली मेरे मेडिकल बैकग्राउंड से रहा. देयर वर अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वर फ्रॉम आईआर एंड देयर वर अ फ्यू फैक्चुअल क्वेश्चंस, बट अदर देन दैट दे वर द सेम. डैफ तो यार, डैफ तो मुझे ना एंथ्रो पूछा, ना मुझे मेरे स्टेट का पूछा, ना मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट का पूछा, कुछ नहीं पूछा. सो मेरा मोस्टली मेडिकल, कोविड, मेंटल हेल्थ, यही सब पूछा गया. देखिए, इससे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ. क्या होता है, सारे मटेरियल में ना सभी चीजें जब आप मंथली भी पढ़ोगे और फिर उसको पीटी में भी पढ़ोगे, सेम चीज है. तो इससे होता क्या है, रिविजन अच्छी हो जाती है. ठीक है, यू विल बी रीडिंग समथिंग इन दी मंथली मैगजीन एंड देन यू विल बी रीडिंग. आई एम नॉट गोइंग टू से दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज दैट पीटी थिंग, दैट मंथली थिंग इन दैट पीटी, मतलब प्रीलिम्स का टाइम. इससे बस आपका ये हो जाएगा, रेपिटेशन हो जाएगी कि आपने न्यूज़पेपर में कोई चीज पढ़ी, फिर आपने यहाँ से पढ़ी. But again, if that is what you're comfortable with, I was not. I only referred to newspaper for basic reading, and I thought कि यार current affairs मैं hopefully PT से cover कर, because again nobody will be revising that monthly. Very rarely there are people that I've seen that are that competent. You know, they are the real toppers, I'd say. कि you know उन लोगों ने नोट्स वोट्स बनाए हुए बिल्कुल क्रिस्प, और वो पूरे प्री के पहले रिवाइज कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज कमेंडेबल इफ यू आर एबल टू डू दैट. आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु कुड. या, सो दिस हैज वर्कड फॉर मी, है ना. मैं ये नहीं कहना चाहूंगी अगेन इन द एग्जाम हाउ मेनी क्वेश्चंस, विच क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट, व्हाट वेल यू डू, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. बट दिस हैज वर्कड वेल फॉर मी, द स्ट्रैटेजी दैट यू आर सेइंग, बिकॉज आई डिड नॉट हैव टाइम दैट मच कि मेरा स्टैटिक ही कंप्लीट नहीं था. तो यू कैन नॉट मूव टू डायनामिक अनलेस एंड अंटिल यू आर डन ऑन द स्टैटिक. तो आई फोकस्ड, एंड ऑल्सो आई हैव दैट फीलिंग कि डायनामिक से न्यूज़पेपर से क्वेश्चंस ऐसे का ऐसा उठ के नहीं आ जाएगा कि गवर्नर कोई स्टेट का वो पूछ लेंगे, नहीं पूछेगा यूपीएससी. या, सो इट्स लाइक कि गवर्नर अगर न्यूज में है तो उसका क्वेश्चन आएगा. ठीक है, कोई कोई अगर नेशनल पार्क न्यूज में है तो वो आएगा. ये फैक्चुअल चीजें आती है, तो वो आपको थोड़ा एक आइडिया रहता है कि अच्छा ये नेशनल पार्क में कुछ हो गया रिसेंटली, सो इट्स बिन देयर, सो यू कैन जस्ट से कि हाँ यू शुड नो दैट आई वुड से. बट अदरवाइज आई हैव नॉट, आई हैव गिवन ओनली वन प्री, एंड बाय गॉड्स ग्रेस दिस सच अ डिफिकल्ट प्री विच आई गॉट थ्रू. सो उसमें ही मैंने आपको बता दिया कि मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि एग्जाम में थोड़ा सा काम, कंपोजर अगर आप मेंटेन रखे, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है बैक ऑफ द माइंड. मेरे को प्रेशर नहीं था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. मुझे पता है आई हैव अ वेरी गुड बैकअप इन दैट मैनर, सो आई वाज नॉट दैट मच स्ट्रेस्ड एंड प्रेशराइज्ड. सो दैट आल्सो वर्क्स वेल इन द प्रीलिम्स. So I think you can do well, but I cannot guarantee it. I don't think. Yeah. No, it's not. It's not. It's definitely not. But I'll tell you, there are a lot of toppers who have done for pre as well. ऐसे करते हैं, मतलब मैंने जिन लोगों से बात करी थी, काफी लोग करते हैं, क्योंकि यही चीज है जो आप पीटी को अगर कर पाओ ना यार, मतलब पीटी से आपको सब याद हो जाए, तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज इट्स समथिंग यू कैन रिमेम्बर एंड रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम कि अच्छा हाँ आई रेड दिस. इट्स ओके. It's on you how well you want to do, and if you have a FOMO, do read it. If you don't, if you are comfortable with that, you can do it. Yeah. Definitely, prioritizing is very essential in entire thing. मेंस तो मेंस के टाइम पे, हाँ, तो यार वो तो है ही, वो एक ही करंट अफेयर सोर्स है. मैंने न्यूज़पेपर से तभी भी मेंस के टाइम तो नहीं हो पाता था. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे पास इतना कुछ था पढ़ने के लिए कि मैं बेरली न्यूज़पेपर को देख पाती थी. मैं कोशिश करती थी कि एडिटोरियल में से कुछ अच्छा एनवायरमेंट का मिल जाए, बिकॉज एनवायरमेंट बिल्कुल डायनेमिक है, तो उस पे से मैं कोशिश करती थी. एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक के लिए मैंने यूजुअली थोड़ा न्यूज़पेपर्स देखने की कोशिश करी है, क्योंकि वो डायनामिक पेपर है, वो कहीं से भी आ जाता है, तो उसके लिए. बट अदरवाइज आई हैव नॉट रेफर टू न्यूज़पेपर्स एज वेल इन माई मेन्स एज वेल. Yeah, I think we've done a good thing. I have a Telegram channel which I've created for, all the people who are appearing for further attempts. I'm going to try to put up as much as I can of my notes and everything. It's going to take a while because I'm busy with some personal stuff, but I'll try to put there. Yeah, thank you so much.